تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون کی لاش کے حوالے سے بتائیں گے کہ فرعون کی لاش کہاں پر ہے، اس کی دریافت کب ہوئی اور اس کا محفوظ رہنا در حقیقت کیا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت مظالم ڈھائے تھے۔ دراصل فرعون اس وقت کے بادشاہوں کا لقب تھا، جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مورس بکائیے کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے حکمران کا نام رامسس دوم تھا۔ بائبل کے بیان کے مطابق اس نے بنی اسرائیل سے بیگار کے طور پر کئی شہر تعمیر کروائے تھے، جن میں سے ایک کا نام رامسس تھا۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تیونس اور قطر کے اس علاقے میں واقع تھا جو دریائے نیل کے مشرقی ڈیلٹے میں واقع ہے۔ رامسس یعنی فرعون کی وفات کے بعد اس کا جانشین مرنفتح مقرر ہوا۔ اسی کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے، یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل جو ابھی آیات کا ترجمہ آپ کو سناؤں گا اس میں بیان کیا ہے۔ فرمایا، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے اس کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھے، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو، اپنے آپ کو خداوند کہلوانے والا، اور پھر اس کی لاش کو دیکھ کر آنے والے نسلیں سبق حاصل کر سکیں۔ چنانچہ اللہ کا فرمان سچ ثابت ہوا اور اس کا ممی شدہ جسم 1898 میں دریائے نیل کے قریب تبزکیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے اوریت نے دریافت کیا تھا، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ ایریڈ اسمتھ نے 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی پائی گئی تھی، جو کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ اس نے اس عمل کا تفصیلی تذکرہ اور جسم کے جائزے کا حال اپنی کتاب شاہی ممیاں 1912 یعنی 1912 میں اس نے یہ کتاب لکھی تھی، اس میں درج کیا۔ اس وقت یہ ممی محفوظ رکھنے کے لیے تسلی بخش حالت میں تھی، حالانکہ اس کے کئی حصے شکستہ ہو گئے تھے۔ اس وقت سے ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اس کا سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم کو ایک کپڑے میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ محمد احمد ادوی دعوت الرسول اللہ میں لکھتے ہیں کہ اس لاش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندارد ہے، جیسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو، غالباً سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا تھا۔ پھر اس کی لاش الوہی فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو۔ جون 1975 میں ڈاکٹر مورس بکائیے نے مصری حکمرانوں کی اجازت سے فرعون کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لیا جو اس وقت تک ڈھکے ہوئے تھے اور ان کی تصاویر اتاریں، اور پھر ایک اعلیٰ درجے کی شعاع مصوری کے ذریعے ڈاکٹر ایل میلجی اور رامسس نے ممی کا مطالعہ کیا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ منیالوی نے صدری جدار کے خرقنے سے سینے کے اندر اور سینے کے اندرونی حصوں کا جائزہ لیا۔ علاوہ ازیں اس کے پیٹ پر تحقیقات کی گئیں۔ یہ اندرونی جائزے کی پہلی مثال تھی جو کسی ممی کے سلسلے میں ہوا۔ اس ترکیب سے جسم کے بعض اندرونی حصوں کی اہم تفصیلات معلوم ہوئیں اور ان کی تصاویر بھی اتاری گئیں۔ پروفیسر سیکالتی نے پروفیسر مگنو اور ڈاکٹر دوریگون کے ہمراہ ان چند چھوٹے چھوٹے اجزاء کا خوردبینی مطالعہ کیا جو ممی سے خود بخود الگ ہو گئے تھے۔ ان تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج نے ان مفروضوں کو تقویت بخشی جو فرعون کی لاش کے محفوظ رہنے کے متعلق کام کیے گئے تھے۔ ان تحقیقات کے نتائج کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ عرصہ پانی میں نہیں رہی تھی۔ اگر فرعون کی لاش کچھ اور مدت تک پانی میں ڈوبی رہتی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی غیر حنوط شدہ حالت میں ایک لمبے عرصے تک پڑی رہتی تو پھر بھی یہ محفوظ نہ رہتی۔ ان معلومات کے حصول کے لیے بھی کوششیں جاری رکھی گئیں کہ اس لاش کی موت کیا پانی میں ڈوبنے سے ہوئی یا کوئی اور وجوہات بھی تھی۔
चुनाचे मजीद तहकीकात के लिए मम्मी को पेरिस ले जाया गया और वहाँ लीगल आइडेंटिफिकेशन लेबॉर्ट्री के मैनेजर सेसाल्डी और डॉक्टर डेरेगन ने मुशाहिदात के बाद बताया कि इस लाश की फौरी मौत का सबब वो शदीद चोट थी जो उसकी खोपड़ी के सामने वाले हिस्से को पहुंची, क्योंकि उसकी खोपड़ी के महराब वाले हिस्से में काफ़ी खला मौजूद है। और ये तमाम तहकीकात आसमानी किताबों में बयान करदा फ़िरौन के डूब कर मरने के वाक़यात की तस्दीक करती हैं कि जिसमें बताया गया कि फ़िरौन को दरिया की मौजों ने अपनी लपेट में ले लिया था। जैसा कि इन नताइज से ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन की लाश को महफूज रखने का ख़ास एहतमाम किया था, जिसकी वजह से ये हज़ारों साल तक ज़माने के असरात से महफूज रही और आखिरकार इसको 19वीं सदी में दरियाफ़्त किया गया और इंशाअल्लाह यह क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए सामान इबरत रहेगी। मज़ीद बरा अल्लाह ताला का ये फरमान कि हम फ़िरौन की लाश को सामान इबरत के लिए महफूज कर लेंगे सिर्फ कुरान मजीद में मौजूद है। इससे पहले किसी दूसरी आसमानी किताब में इसका ऐलान नहीं किया गया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मालूमात लेकर इसको कुरान में लिख देते। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जैसा कि यहूदियों और ईसाइयों का पैगम्बर इस्लाम के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा है। चुनांचे ये कुरान मजीद के सच्चा और मनजानिबुल्लाह होने का एक और लारैब सबूत है जिसको जुटलाना किसी के बस में नहीं है। फ़िरौन की लाश के बारे में बहुत सारी तौजीहात पेश की जाती हैं और बहुत सारी बातें की जाती हैं। हम यहाँ ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि कुरान मजीद साइंस की किताब हरगिज़ नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर पर इसलिए नाजिल की ताकि उसके ज़रिए से वो लोगों का तज़किया कर सकें। इस ज़िमन में अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सी निशानियों का जिक्र किया है और उनके बयान में महज ज़िमनी तौर पर बाज़ ऐसे तारीख़ी और इल्मी हक़ाइक़ की तरफ इशारा किया है जो इससे पहले कभी नहीं बयान हुए थे। साइंस के हवाले से जो बातें बरसबील तज़किरा बयान हुई हैं वो ऐसी हैं जिन्हें जदीद साइंसी तहकीक आज दरियाफ्त कर रही है, और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि इन हक़ाइक़ को बयान करने वाला इस कारखाना कुदरत का खालिक है। लिहाजा इस तरह के साइंसी हक़ाइक़ के इंकशाफ से इस गलत फहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि कुरान महज साइंसी या इस तरह इल्मी इंकशाफात करने के लिए नाजिल हुआ था। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम भी है और उसके आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा होने का एक ज़िंदा मौज़ा भी। कुरानी मौज़ात के सिलसिले में इस दफ़ा एक ऐसे मौज़े की दास्तान दर्ज की जाती है जिसको पढ़कर ईमान वालों का ईमान ताज़ा भी होगा और मजबूत भी, और हर गैर मुस्लिम के लिए मौज़ा एक मुजस्सम सवाल बन जाएगा कि इस अजीम निशानी के बावजूद भी कुरान मुनज़्ज़ल मिनल्लाह न मानने की आखिर क्या वजह है। मेरी बहन अपने बेटे की सादत से परेशान थी कि उसकी इंटरनेट से दिलचस्पी बढ़ गई है, लेकिन एक दिन उसने खुशी खुशी मुझे बताया अब उसकी परेशानी दूर हो गई है। इस इत्मीनान की वजह बताते हुए वो कहने लगी कि पिछली रात 1 बजे स्टडी रूम से आने वाली आवाज़ ने हमें नींद से बेदार कर दिया था। मेरे शौहर रऊफ साहब जल्दी से उठे और डरते डरते एहतियात से स्टडी रूम की तरफ चल दिए। स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला और कमरा रोशन था। उन्होंने दाएं तरफ देखा तो एक और हैरत ने उनके कदम थाम लिए। मुआज़ के कमरे की बत्ती भी रोशन थी। वो पहले उस कमरे की तरफ बढ़े, अंदर देखा तो कंप्यूटर ऑन है लेकिन मुआज़ वहाँ मौजूद नहीं। इस चीज़ ने उनकी तशवीश में मज़ीद इजाफा किया। अब वो दोबारा स्टडी रूम की तरफ बढ़े, दरवाजे के करीब आए तो फिर आवाज़ आई। वो दबे कदमे स्टडी रूम में दाखिल हुए और फिर उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। स्टडी रूम में मुआज़ उनसे बेखबर किताब पढ़ने में मसरूफ़ था। भाई ये कौन सा वक्त है तहकीक का? उन्होंने बेजारी से पूछा। अब वो मेरी इंटरनेट पर एक दोस्त से बात हो रही है, उसने मुझसे एक बात पूछी थी जिसके लिए मुझे कुरान मजीद देखना पड़ गया था, इसलिए यहाँ कुरान मजीद और उसकी तफसीर देख रहा हूँ। लेकिन वो आवाज़ दरअसल मुझसे एक किताब गिर पड़ी थी, इतनी देर में मैं भी वहाँ पहुँच गई। ये एक वाक़या है जो बयान कर रही हैं वो। हम दोनों हैरत से बेटे की तरफ देख रहे थे। दरअसल हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इंटरनेट पर गुफ्तगू मुआज़ को कुरान मजीद पढ़ने पर मजबूर कर देगी। तब हमारा इस हकीकत पर एतमाद और बढ़ गया था कि कोई ईजाद असल में बुरी नहीं होती, इसका इस्तेमाल है जो अच्छा या बुरा बना होता है। कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद रऊफ साहब ने पूछा, मुआज़ बेटा कुरान मजीद में क्या चीज़ देख रहे हो और किस दोस्त से बात हो रही है? दरअसल एक बड़ी अच्छी साइट है, मैं साइट को देखता रहता हूँ। उसके वो सफ़ात जिसमें गैर मुस्लिमों के सवालों के जवाब दिए जाते हैं बड़े दिलचस्प और ईमान अफरोज़ होते हैं। इसी सफ़े पर एक गैर मुस्लिम तालिब इल्म राबिन के साथ मेरी गुफ्तगू शुरू हुई है। ज़ाहिर है कि वो हम मज़हब पर गुफ्तगू करते थे, क्यों हमारी दोस्ती हो गई। लेकिन आज उसने मेरे से एक मुश्किल सवाल कर दिया है। मैं बेबस इसी सवाल का जवाब तलाश कर रहा था। मिस्टर रॉबिन ने तुमसे कौन सा सवाल पूछ लिया? रऊफ साहब की नींद अब ख़त्म हो चुकी थी और वो बेटे की दिलचस्पियों में दिलचस्पी ले रहे थे। अब वो पूछ रहा था कि सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो फ़िरौन की लाश को महफूज रखेगा और उसे दुनिया के लिए नमूना बनाएगा, मगर ये लाश कहाँ है
कुरान के दावे के मुताबिक इसे कब और कहाँ नमूना बना कर रखा गया। और अबू मैंने सूरह यूनुस की वो आयत देख ली है, वाकई इसमें अल्लाह ने यह फरमाया है, मगर मुझे तो इसके बारे में कुछ इल्म नहीं। मैंने कुछ तफसीरें भी देखी हैं, इसमें भी इसके मुतल्लिक नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि अब रॉबिन को क्या जवाब दूं। रऊफ साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा वो देखो दाएं तरफ अलमारी की तीसरी शेल्फ से 5वीं किताब उठाओ। वास ने वो किताब निकाली, किताब अंग्रेजी में थी, उसका नाम था कुरान, बाइबल और साइंस। रऊफ साहब बोले, बेटे इस किताब में तुम्हें इस सवाल का बड़ा अच्छा जवाब मिल जाएगा और मेरे ख्याल में तुम आधे घंटे में ही उसे जवाबी ईमेल भेज दोगे। अब तुम किताब पढ़ो और हम सोते हैं। और हाँ बेटा, ये इतनी रात देर जागना कोई अच्छी आदत नहीं। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक जागो। रात देर तक जागने से फजर की नमाज भी कसा हो सकती है। ये कहकर उसके अबू अपने कमरे की तरफ चल दिए। सुबह उठकर माज ने बताया कि उसने बेचैनी से किताब की फहरिस्त देखी। किताब के इंडेक्स में फिरौन मूसा की लाश के अल्फाज देखे और मुतलका सफ़ात निकाल कर उन्हें पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ता गया वैसे वैसे उस पर हैरतों और इंकिशाफात के नए दरवाजे खुलते चले गए। और इससे पहले जो वाक़या आपको बताया है, वो तमाम तर वाक़या जो दर्ज किया गया है, जो तहकीक दर्ज की गई है, उसने उस मिस्टर रॉबिन को भेजा और लिखा कि मिस्टर रॉबिन, मेरे पास आपके लिए बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मशहूर माहिर आसार कदीमा और रैत ने 1896 में फ़िरौन की मम्मियाँ दरियाफ़्त की थीं। रॉबिन ने जवाब दिया, तुम्हारा मतलब है कि मिस्र के उन हुक्मरानों की हनूद शुदा लाशें जिन्हें ज़मींदोज़ मकबरों में रखा जाता था? बिल्कुल वही। फिर ऐसा हुआ कि 1907 में मिस्र के अजायब घर में रखी फ़िरौन की हनूद शुदा लाश को फफूंदी लग गई। अजायब घर की इंतज़ामिया ने इस मम्मी का मुआयना किया तो मालूम हुआ कि इसके ऊपर कपड़े की पट्टियाँ लिपटी हुई हैं, इन पर समुद्री नमक मौजूद है। ख़ास किस्म का मिसाला लगाकर चुनके महफूज करते थे ताकि लाशें ख़राब ना हों और सही हालत में रहें। इस तरह लाश में नमक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यही सवाल माहिरीन के सामने था और फिर उसके लिए उन्हें पेरिस भेजा गया। यही तमाम तर वाक़या जो हमने आपको सुनाया, यही वाक़या दर हकीकत मिस्र के फ़िरऔन का वाक़या है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको लाज़मी तौर पर इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे इंकशाफात मिले होंगे जो कि आपकी इल्म में इजाफ़ा का बायस बने होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस भी आपको मुसलसल मिलती रहें। याद रहे कि तहकीक, ये रिसर्च इंटरनेट बेस्ड हुआ करती है और चंद किताबों की मदद से ये तहकीक की जाती है जो आप तक पहुंचाई जाती है।